Good afternoon, dear viewers. I am very happy to welcome you all to this Facebook live session of Gujarat Super Speciality Hospital, Vadodara. And with us today is Dr. Karishma Matai, who will speak on the topic diabetes, myths and facts. So it's going to be a myth buster episode, and we are really happy to host all of you, dear friends, and especially Dr. Karishma. Welcome, Doctor. Thank you. So, before we begin with the session, a little introduction of Dr. Karishma. Dr. Matai is a consultant physician and diabetologist in Gujarat Super Speciality Hospital. She has done MBBS and MD in general medicine from Pramukh Swami Medical College. She has also done several courses in diabetes, like certified course in evidence-based diabetes management from Public Health Foundation of India, and another one from Royal College of Physicians in the UK. Welcome, Doctor. We are really glad to have you and hope that all our viewers will have their answers by the end of this session through you. We are really glad. So, we move on directly to the question part of it, ma'am. Presenting the first question, a very basic one. Are all types of diabetes the same? Okay, so good afternoon, everyone. A very, very warm welcome to all of you. Thanks for the introduction. So let's move to the first question. जैसे आपने पूछा, are all types of diabetes the same? Let us first understand what is diabetes. ડાયાબિટીસ એક એવો રોગ છે કે જેમાં આપણી બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન જે બનવું જોઈએ એ કાં તો ઓછું બને છે કાં એની અસર ઓછી આવે છે, બરાબર. એના કારણે બોડીમાં શુગરનું પ્રમાણ વધી જાય છે અને એ આપણા અન્ય અંગોને નુકસાન કરે છે. ડાયાબિટીસ મુખ્ય ઘણા બધા પ્રકારમાં છે, જેમાંથી આપણે જાણવા લાયક મુખ્ય 3 પ્રકારના ડાયાબિટીસ એટલે કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ અને જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ. ડેફિનેટલી આ બધા ડાયાબિટીસ અલગ અલગ છે, એની ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ આવશે અને એ બધા ડાયાબિટીસ સેમ નથી. એટલે ડૉક્ટર પાસે જઈને આપણા ડાયાબિટીસની તપાસ કરાવી, જાણવું કે આપણને કયું પ્રકારનું ડાયાબિટીસ છે અને એનાથી આગળ આપણને શું તકલીફ થશે એ બહુ જરૂરી છે. Thank you so much, Doctor. Second question that we have is, what are the main causes of diabetes? ઓકે, ફાઇન. સો હવે વાત કરીએ તો આ જ મુખ્ય 3 પ્રકારના ડાયાબિટીસની. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ એ એક ઓટો ઇમ્યુન ડિઝીઝ છે, એટલે કે આપણા શરીરના જ એવી એન્ટીબોડી પ્રોડ્યુસ થાય છે જે આપણા શરીરના જ કોષને નુકસાન કરે છે, જેનાથી બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન બનતું બંધ થઈ જાય છે. એટલે આને કહેવાય છે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ. આ વધારે જોવા મળે છે નાના એજ ગ્રુપમાં, જેનાથી ઇન્સ્યુલિન બોડીમાં બનતું બિલકુલ બંધ થઈ જાય છે. બીજા પ્રકારનું ડાયાબિટીસ જે વધારે પડતું દુનિયામાં ફેલાયેલું છે એને કહેવાય છે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ. આ યુઝ્યુઅલી 35-40ની એજ પછી જોવા મળે છે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થવા માટે ઘણા બધા રિસ્ક ફેક્ટર્સ હશે, જેમ કે વધારે ઉંમર હોવી, ફેમિલી હિસ્ટ્રી પોઝિટિવ હોવી, આપણું વજન વધારે હોવું કે પછી ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી હોવી, આ બધાના અને જેનેટિક હિસ્ટ્રી, આ બધાના ઇન્ટરપ્લેથી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થાય છે. ત્રીજો અને એક બહુ મુખ્ય પ્રકારનો ડાયાબિટીસ જે જોવા મળે છે એ છે જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ, જેમાં બાળક પેટમાં હોય ત્યારે માતાના શુગરના લેવલ્સ વધી જાય છે, જેને કહેવાય છે જેસ્ટેશનલ ડાયાબિટીસ. આને પણ કંટ્રોલ કરવું ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે આ માતાની અને બાળકની બંનેની સેહત માટે ખૂબ જરૂરી છે. सो डॉक्टर, इन शॉर्ट अगर हम कहने जाए तो जो जनरली हमें डायबिटीज दिखता है, जो एज रिलेटेड होता है, वो टाइप 2 डायबिटीज है, और जो वो बच्चों टाइप में देखने को मिलेगा वो टाइप 1 डायबिटीज है. यस, ब्रॉडली स्पीकिंग यही टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज है. बट दीज डेज और भी बहुत सारे डायबिटीज के टाइप्स डिस्कवर हो रहे हैं, जिसके हिसाब से हम इंटरमीडिएट एज ग्रुप में भी अगर कोई प्रेजेंटेशन आता है तो उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है. आज की तारीख में भी ऐसे यंग पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो हमारे सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गए, जो फास्ट फूड्स का कल्चर हो गया है, उसकी वजह से इवन यंग एज ग्रुप में भी टाइप 2 डायबिटीज स्टार्ट हो चुका है. सो डाइट पे कंट्रोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लग रहा है इस पॉइंट से आप कहना चाहते हैं. डॉक्टर, थर्ड क्वेश्चन ये है हमारा कि बॉर्डर लाइन डायबिटिक होने से क्या चिंता की बातें होती है? शुड यू वरी इफ यू आर अ बॉर्डर लाइन डायबिटिक? ओके, अभी ये समझने के लिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इज डायबिटीज एंड हाउ इज इट डायग्नोस्ड. ओके, अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको डायबिटीज के कोई भी सिम्टम है, सिम्टम्स में व्हाट इज इंक्लूडेड इज बाहर बहुत भूख लगना,
बहुत यूरिन होना, बहुत प्यास लगना, वजन बहुत कम हो जाना, लगने पर रिजुनेशन नहीं होना, रूज नहीं आना, इन सब में से कुछ भी हुआ, या आपको कुछ फैमिली हिस्ट्री है, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप डॉक्टर के पास गए और डायबिटीज का टेस्ट हुआ। डायबिटीज का टेस्ट होता है शुगर से, मतलब हम आपका ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में आपका या तो रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा जिसको बोलते हैं आरबीएस, या तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट किया जाएगा जिसमें आपका पेट 10 से 12 घंटे भूखे रहेगा तब आपका ब्लड टेस्ट किया जाएगा। या तीसरा एक टेस्ट होता है एवरेज, जिसको बोलते हैं HbA1c। इसमें आपका लास्ट 3 महीने में आपको डायबिटीज के कोई भी लक्षण बॉडी में थे कि नहीं वो पता चलेगा। इन 3 टेस्ट को में से कोई टेस्ट डॉक्टर आपको करके दे विल फाइंड आउट वेदर यू आर हैविंग डायबिटीज और नॉट। इफ यू फॉल इनटू द डायबिटिक कैटेगरी यू आर डेफिनेटली अ डायबिटिक। बट अगर आपके शुगर्स नॉर्मल भी नहीं है लेकिन डायबिटिक रेंज में भी नहीं है तो हम आपको बॉर्डर लाइन डायबिटिक या तो व्हाट इज कॉल्ड इन अवर टर्म्स एज प्री डायबिटिक, यू विल बी लेबल्ड एज अ प्री डायबिटिक। प्री डायबिटिक होना ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट अ कॉज ऑफ वरी, डेफिनेटली इट इज अ कॉज ऑफ वरी, because if you don't take the right steps you can land up into having diabetes in the upcoming 5 to 10 years. So it is the stage when you should be aware and you should start steps कि जिससे आपका diabetes manifest ना हो। What are the steps that you should take to avoid getting into being a diabetic? उसमें most important is you need to do some exercises. Exercises to the tune of around 150 minutes in a week you must exercise and you must take steps कि जिससे आपका weight reduce हो जाए, right? Also you can take care of your healthcare provider, अपने डॉक्टर के पास जाइए और उससे बोलिए कि ये है and they will guide you accordingly. थैंक यू सो मच डॉक्टर। अगला क्वेश्चन बहुत जेनेरिक है, जो हमें लगता है हमेशा कि शुगर के वजह से डायबिटीज होता है, तो क्या ये बात सच है? इज इट लाइक डायबिटीज इज कॉज्ड बाय शुगर? Now that is absolutely what I call is a myth. Okay, so शुगर डायरेक्टली कंज्यूम करने से डायबिटीज होता है इज नॉट करेक्ट। what actually happens is आप जैसे ज़्यादा शुगर इंटेक या शुगरी फूड्स का इंटेक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इंटेक बढ़ाएंगे, इससे लॉन्ग टर्म पे आपका वेट गेन होगा। दिस वेट गेन विल लीड टू व्हाट इज नोन एज इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसमें आपकी बॉडी में इंसुलिन आपके जो सेल्स पे एक्ट करना चाहिए वो नहीं करेगा। इसकी वजह से डायबिटीज लॉन्ग टर्म पे मैनिफेस्ट होगा। So what you should do, take help of natural fruits. Like if you want to eat something sweet, go for choosing healthier options, choose to eat fruits. You can also use, a diabetic can also use sugar substitutes. आजकल मार्केट में बहुत सारे शुगर सब्सटीट्यूट्स आ गए हैं, जैसे कि सैकरिन है, सुक्रालोज है, स्टीविया है। You can use those and regulate your blood sugars. But directly sugar does not lead to diabetes. थैंक्स मैम। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि कैन यू स्टॉप योर मेडिकेशन वंस योर ब्लड शुगर इज अंडर कंट्रोल? जब हमें लग रहा है कि चलो ब्लड शुगर थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मेडिकेशन स्टॉप करें? ओके, सो अभी ये समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इज डायबिटीज मैनेज। देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स टू मैनेज योर डायबिटीज। द फर्स्ट इज डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। सबसे पहला स्टेप है कि यू नीड टू मेक તમારા रहन सहનમાં, તમારા ખોરાકમાં ચેન્જીસ કરવાની ખૂબ જરૂર છે, બરાબર? સેકન્ડ સ્ટેપ આવે છે એક્સરસાઇઝ કાં તો વ્યાયામ, અને ત્રીજો સ્ટેપ છે દવાઓ। તમે એક પહેલો અને બીજો સ્ટેપ બાયપાસ કરીને થર્ડ સ્ટેપ પર નથી જઈ શકતા। એટલે જો તમારે ડાયટ અને લાઇફસ્ટાઇલ અંડર કંટ્રોલ છે અને તમારે રેગ્યુલર એક્સરસાઇઝ કે કોઈ વ્યાયામ થાય છે તો તમારી દવાઓ વધારે સારી રીતના કામ કરશે અને ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહેશે। એકવાર જો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવી ગયું તો ડાયટ, લાઇફસ્ટાઇલ અને એક્સરસાઇઝને કંટ્રોલથી ડૉક્ટર તમારી દવાઓ ધીમે ધીમે ઘટાડશે અને ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ જ દવાઓ બંધ કરવી। જે સૌથી મોટી ગડબડ થાય છે ત્યાં જ થાય છે કે પેશન્ટને એવું લાગે છે કે અમારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ આવી ગયું છે, અમે અમારી દવાઓ બંધ કરી દઈએ અને પછી ડૉક્ટરની વિઝિટ્સ બંધ થઈ જાય છે। ऑल ऑफ अ सडन कुछ महीनों बाद, आफ्टर सम मंथ्स, योर डायबिटीज विल शूट अप। थैंक यू डॉक्टर। तो हमारे बीच अगर कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो कभी कभी सोचते होंगे कि अच्छा अब जब ब्लड शुगर कम हो गया है तो हम अज्यूम करते हैं चीज़ों को, तो अजम्पशंस कैन बी रिस्की, दैट इज व्हाट आई फील, तो अज्यूम किए बिना हमें अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करके आगे स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू गेट डायबिटीज विदाउट एनी फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिजीज? अगर आपके फैमिली में डायबिटीज है ही नहीं
फिर भी क्या डायबिटीज हो सकता है? ઓકે સો આપણે સમજવાની એ જરૂર છે કે ડાયાબિટીસ ઇઝ caused because of an interplay of many risk factors. It is not because of just one risk factor, not only family history. Definitely family history has got a very important role કે જેનાથી ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ થશે, પણ બીજા પણ ઘણા બધા કારણો છે, જેમ કે આપણે ડિસ્કસ કર્યું, એજ વધારે હોવી, આપણે જે એથનિસિટી પર બિલોંગ કરીએ છીએ તે, વજન વધારે હોવું, ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી હોવી, આ બધાના કારણે ડાયાબિટીસ થાય છે, જેમાં ફેમિલી હિસ્ટ્રી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ રિસ્ક ફેક્ટર છે. એવા ઘણા પેશન્ટ્સ હશે કે જે લોકોને આગળ ફેમિલીમાં ડાયાબિટીસ નથી, બટ બીકોઝ ઓફ ધ કરંટ લાઇફસ્ટાઇલ, યોર ફિઝિકલ ઇનએક્ટિવિટી, યોર એજ, તમને ડાયાબિટીસ આવવાની શક્યતા રહેશે. એટલે ખાલી એક ફેમિલી હિસ્ટ્રી નેગેટિવ હોવાથી આપણને ડાયાબિટીસ થઈ શકે એવું નથી. આજની તારીખમાં ઇન્ડિયામાં જોવા જઈએ તો દર 11માંથી 1 માણસને ડાયાબિટીસ છે. દુનિયામાં ઇન્ડિયામાં ડાયાબિટીક પોપ્યુલેશન સેકન્ડ હાઈએસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ છે, સેકન્ડ ઓનલી ટુ ચાઇના, અને વેરી સૂન ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ટુ બીકમ ધ ડાયાબિટીક કેપિટલ ઓફ ધ વર્લ્ડ. સો તમારે રેગ્યુલરલી ડાયાબિટીસ માટે સ્ક્રીનિંગ કરાવવું ખૂબ જરૂરી છે. सो थैंक यू डॉक्टर, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये हमें ये भी बताता है कि हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि हम सेकंड नंबर पर ही रहे, बल्कि हम नीचे गिरे, ऊपर नहीं बढ़े. थैंक यू डॉक्टर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू ओनली पीपल विद टाइप 1 डायबिटीज नीड इंसुलिन? क्या इंसुलिन की जरूरत सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को होती है? ઓકે, હવે એની માટે આપણે એ જાણવું જરૂરી છે, જેમ આપણે પહેલા પણ ડિસ્કસ કર્યું, કે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ થાય છે કારણ કે બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન બનતું બિલકુલ બંધ થઈ જાય છે. એટલે એવા પેશન્ટને તો ઇન્સ્યુલિન લેવું જ પડશે. આ બાળપણમાં આવેલું ડાયાબિટીસ છે, જે તમારે ઇન્સ્યુલિન લીધાથી જ કંટ્રોલ આવશે. અને ઇન્સ્યુલિન લીધાની સાથે સાથે તમારે દિવસમાં 4 થી 5 વખત શુગર ટેસ્ટ પણ કરવા પડશે વર્ષો માટે. ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ઓલ્સો આગળ જતા ઇન્સ્યુલિનની જરૂરિયાત પડી શકે છે. દર એક ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસને શરૂઆતમાં રહન સહનમાં ફેરફાર, એક્સરસાઇઝ અને દવાઓથી શુગર મેનેજ થઈ શકે છે. પણ એકવાર ડાયાબિટીસ આવીને 8-10 વર્ષ થઈ ગયા હોય તો એવા પેશન્ટ્સને ઘણી વખત દવાનો અસર નથી આવતો અને આગળ જતા ઇન્સ્યુલિનની જરૂર પડે છે. थैंक्स डॉक्टर. अगला सवाल, जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं उन्हें शायद पता होगा, लेकिन जो लोग ऐसे लोग भी हैं जो देख रहे हैं जिन्हें डायबिटीज नहीं है, उनके फैमिली में नहीं है, उनके लिए सवाल इम्पोर्टेंट बनता है कि आर इंसुलिन इंजेक्शंस पेनफुल? इंसुलिन की जो इंजेक्शन होती है वो क्या पेनफुल रहती है, दर्द देता है वो इंजेक्शन? ओके, चलिए. अभी ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जिसकी वजह से पेशेंट्स इंसुलिन लेने से डरते हैं. बराबर, ये एक अफवाह है, हम बोल सकते हैं कि जो इंसुलिन की इंजेक्शंस दर्द करती है, बिल्कुल नहीं. इंसुलिन आज की तारीख में हम बहुत सारे डिवाइसेस से डिलीवर कर सकते हैं. इंसुलिन एक नॉर्मली सिरिंज से डिलीवर किया जा सकता है. इंसुलिन के लिए स्पेशलाइज्ड पेन्स आ गई है, जो आप यू कैन टेक देम ऑन द गो. आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं तो इंसुलिन पेन्स के साथ ट्रैवल कर सकते हैं. एंड इंसुलिन के पंप्स भी आ गए हैं. इन तीनों डिवाइसेस के अंदर जो इंसुलिन की निडल्स यूज की जाती है, दे आर वेरी स्मॉल साइज. मतलब आपको पिन प्रिक से भी कम दर्द महसूस होगा. सो इंसुलिन लेना पेनफुल है, इट इज डेफिनेटली अ मिथ. थैंक्स डॉक्टर. तो हमारे जो एपिसोड के क्वेश्चंस है वो तो यहाँ पे खत्म हो गए, एंड आई एम श्योर दैट हमारे पेशेंट्स को, हमारे दोस्तों को जो पेशेंट्स नहीं भी है उन्हें भी बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी. लेकिन हमारे पास कुछ यूजर क्वेश्चंस भी है, जो लोग देख रहे हैं, व्यूअर क्वेश्चंस वो भी है, तो वो हम शुरू करेंगे. डॉक्टर भावना हमारे साथ जो है, भावना नहाता, वो पूछ रहे हैं, हाय डॉक्टर मताई, आई हैव वन क्वेश्चन. If I have type 2 diabetes and my doctor tells me to start insulin, does it mean that I'm failing to take care of my diabetes properly? ओके, ठीक है. ये शायद हम लोगों ने अभी जो डिस्कस किया कि आप हर टाइप 2 डायबिटीज को शुरुआत में दवाइयों से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और एक्सरसाइज से धीरे धीरे डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगा. बट वंस योर डायबिटीज ड्यूरेशन क्रॉसेस से 8 to 10 years of your diabetes, in many patients it will occur that the medicines will not work to the extent that they should. In that cases, your doctor, your healthcare provider will advise you to start insulin. इंसुलिन लेना कोई पनिशमेंट नहीं है, ये समझना जरूरी है. इंसुलिन एक किस्म की दवाई ही है जो आपके बॉडी में आपकी गुड हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत जरूरी है. इंसुलिन टाइम से लेने से और टाइम से चालू करने से अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में आया
तो लॉन्ग टर्म जो डैमेजेस बिकॉज ऑफ हाई शुगर होने वाले हैं, जिसमें हार्ट डिजीजेस, किडनी डिसऑर्डर्स, लिवर डिजीजेस, एम्पुटेशंस, ये सब कुछ कंट्रोल में आ सकता है. So it is very important that your doctor advises you on time to start your insulin and your sugar gets managed on time. थैंक यू डॉक्टर. आई एम श्योर भावना जी को अपना आंसर मिल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस सोनम. वो पूछ रहे हैं कैन ओबेसिटी कॉज डायबिटीज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ये मुझे. ठीक है, अभी ये बात करते हैं ओबेसिटी के बारे में. सो ओवरवेट इज डेफिनेटली अ रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज. जो हमने बात किया, जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज होता है, जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज, उसके लिए ओबेसिटी और दूसरे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स लाइक एक्स्ट्रा एज मोर देन 40 इयर्स, फिजिकल इनएक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, ये सब एक रिस्क फैक्टर्स है, जिसमें ओबेसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. जितना आपका वजन ज्यादा है, उतना आपको डायबिटीज होने के रिस्क डेफिनेटली ज्यादा रहेंगे. दूसरा, टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इज नॉट अ जेनेटिक कॉज एंड उसमें इट इज नॉट प्रिवेंटेबल. सो उसका डायरेक्टली वेट से कोई रिलेशन नहीं है. ऐसे कई और लोग होंगे जो आप देखेंगे कि वो ओवरवेट है, जो ओबेस है, लेकिन उनको डायबिटीज नहीं होता है. सो डायबिटीज इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज. ओबेसिटी के अलावा दूसरी बहुत सारी चीजें इंटरप्ले में आएगी, तब डायबिटीज मैनिफेस्ट होता है. थैंक यू डॉक्टर. आई एम श्योर मिस सोनम को अपना आंसर मिला है. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. मिस्टर जयमिन हमारे साथ हैं, जो बोल रहे हैं हेलो डॉक्टर. फर्स्ट thank you for arranging this amazing session. I have one question. My sugar levels always remain on the higher side for years, but is it okay as I don't have any symptoms? तो sugar levels मेरे बढ़े हुए रहते हैं, लेकिन मुझे कोई symptoms नहीं है, तो क्या ये okay है? ये पूछना चाहिए. Okay, there's a very important question to understand. ये बहुत अच्छा है कि आपने ये पॉइंट रेज किया. अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज में बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं. डायबिटीज विल नॉट मैनिफेस्ट विथ ओवर्ट सिम्टम्स, राइट. सो यू नीड टू फाइंड आउट. आपको रेगुलरली शुगर्स को कंट्रोल करने, आपको रेगुलरली शुगर्स को चेक करना भी बहुत जरूरी है. रेगुलर डॉक्टर की विजिट्स देना, रेगुलर चेकअप्स करवाना बहुत जरूरी है. ये शुगर्स आपको इस टाइम पे हायर साइड पे रहते हैं, वर्षों से प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे करके आपके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है उनको डैमेज कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे कि आपके हार्ट को डैमेज करेगा, आपकी रेटाइना को डैमेज करेगा, आपकी किडनीज को डैमेज करेगा, और नर्व्स को. बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स है जिसका डायबिटीज, लॉन्ग टर्म डायबिटीज अनकंट्रोल होने से उसके असर आते हैं. सो इट इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट in touch with a doctor and get your diabetes under control even if you don't have symptoms. Thank you, doctor. I'm sure Mr. Jaimin को अपना आंसर मिला है. Moving to the next question. Mr. Daniel मेहदी सैयद हमारे साथ है, जो पूछ रहे हैं कैन इंसुलिन हार्म मी. इंसुलिन से मुझे कोई नुकसान हो सकता है? ओके फाइन. अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन, आपको ये समझना है कि इंसुलिन एक लाइफ सेवर मेडिसिन है, राइट. डेफिनेटली इंसुलिन आपकी बॉडी में जाएगा तो शुगर्स इमीडिएटली कंट्रोल में जल्दी आएंगे, आपका बॉडी में ग्लाइसेमिक बैलेंस अच्छे से मेंटेन रहेगा. इट इज डेफिनेटली लाइफ सेवर मेडिसिन, बट फॉर मेनी पीपल इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज. आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे नए एंड इम्प्रूव्ड इंसुलिन आ गए हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे और आपको ये इंसुलिन टाइट्रेट करना बहुत आसान हो जाएगा. सो यू शुड ऑलवेज टेक गाइडेंस फ्रॉम योर डॉक्टर ऑन हाउ इंसुलिन इज टू बी टेकन एंड व्हाट डोज इज टू बी टेकन. इन दैट केस इंसुलिन विल नॉट डू एनी हार्म. Thank you, doctor. Thank you, Mr. Daniel. Next question is, ma'am, being on insulin means I don't have to make lifestyle changes. तो अगर मैं इंसुलिन ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या ये है कि मुझे लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है. ओके फाइन. अभी ये भी एक काफी पर्टिनेंट क्वेश्चन है. जैसे हमने बात किया कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए 3 स्टेप्स बहुत जरूरी है. फर्स्ट बीइंग डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, द सेकंड बीइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, एंड थर्ड कम्स टू मेडिसिन और इंसुलिन व्हाटएवर. सो अगर आप इंसुलिन पे है तो आपको ये 2 चीजें, मतलब डाइट और लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज पे तो डेफिनेटली ध्यान देना है. On the contrary, you should focus more. You should eat healthy. Healthy खाना खाइए, जैसे कि take good green leafy vegetables, avoid processed food, refined foods, oily food, ये सब कुछ avoid करना है. Regular exercises करनी है. Stress levels को maintain करना है.
अगर आपको कोई एडिक्शंस है जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल, तो उसको हो सके तो कट डाउन करिए, उसको रिड्यूस करिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल्स। इसे कंट्रोल करिए, रेगुलर डॉक्टर के पास जाके रेगुलर चेकअप्स कराइए, क्योंकि यही डायबिटीज आपके लॉन्ग टर्म पे आपके दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने वाला है। सो डेफिनेटली इफ यू आर ऑन इंसुलिन, यू हैव टू मेक ऑल एफर्ट्स फॉर अ गुड लाइफस्टाइल। Thank you, doctor. I hope Ms. Janvi has got her answer. The next question is from Mr. Ilyas Ganchi. He asks, does COVID-19 cause diabetes? COVID के चलते किसी को अगर कोविड हो रहा है तो क्या वो डायबिटीज में लीड हो सकता है? ओके, राइट। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, बिकॉज अभी अभी हम लोग 2 कोविड की बड़ी वेव से गुजरे हैं और हमने देखा है कि काफी सारे पेशेंट्स में डायबिटीज अनमास्क हुआ है। अब ये समझते हैं ये कैसे होता है। डायबिटीज बेसिकली, जैसे हमने बोला, कि बहुत मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है। कोविड में बाय सेल्फ बॉडी में जो इम्यून डिसरेगुलेशन होता है, उसकी वजह से a person is definitely prone to get diabetes, बिकॉज बॉडी में जो हार्मोन सिक्रेशंस है उसमें चेंजेस आएंगे, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कोविड में कुछ दवाइयां ऐसी यूज की जाती है जो लॉन्ग टर्म पे हमको डायबिटीज भी ला सकती है। सो काफी सारे पेशेंट्स ऐसे भी थे जो शायद प्री डायबिटिक थे, जो अभी डायबिटीज में मैनिफेस्ट हो गए, बिकॉज वन एक्स्ट्रा स्ट्रेस लाइक कोविड वाज इन्वॉल्व इन देयर सिस्टम। So directly it may not cause diabetes, but through an interplay of many other factors, diabetes होता है। Thank you so much, ma'am. So with this, we come to the end of our viewer questions, and I'm pretty sure that हमारे व्यूअर्स के जितने क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स उनको मिले हैं, क्योंकि आपने एक्सप्लेन बहुत सरल भाषा में, बहुत सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। हमारे कुछ व्यूअर्स कुछ कमेंट्स भी दे रहे हैं, जैसे गुड सेशन, मिस रिद्धि थे जिन्होंने गुड सेशन लिखा। सो डॉक्टर, ओवरऑल मुझे ये लगता है कि ये सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा इन कॉमन, बिकॉज डायबिटीज एक ऐसा टॉपिक है जो एक जेनेरिक टॉपिक है, जो जिन्हें है उनको भी ये सब चीजें जानने की जरूरत है, और जिन्हें नहीं भी है वो भी अगर इसके बारे में जानकारी रखे तो आगे जाके वो यूजफुल हो सकता है, या फिर इवन इन फैमिलीज ये बहुत यूजफुल रहता है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक क्वेश्चन हमें आया है, एक लास्ट व्यूअर क्वेश्चन हम ले लेते हैं डॉक्टर। पृथा पटेल पूछ रहे हैं हमें, इवन व्हेन समवन इज ऑन इंसुलिन एंड एंटी डायबिटिक मेडिकेशंस, व्हाट आर द रीजंस दैट शुगर लेवल्स स्टिल कीप फ्लक्चुएटिंग कंसीडरिंग दैट डाइट एंड एक्सरसाइज इज कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग? सो सब कुछ होने के बावजूद अगर फ्लक्चुएशन है तो उसका कारण पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी ये काफी कुछ एक पेशेंट के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, राइट। इफ यू वी आर टॉकिंग अबाउट सम एल्डरली पेशेंट जिनके डाइट इरेगुलर है, कभी मील्स इरेगुलर होते हैं, कभी इंसुलिन की टेक्निक गड़बड़ होती है, दवाइयों का कुछ डोजिंग सही नहीं होता है, उसका एब्जॉर्प्शन सही नहीं होता है, या इंटरमीडिएटली कुछ बीच में स्ट्रेसेस आ जाते हैं, कुछ हार्ट डिजीज हो गया, से सम इन्फेक्शन हो गया, सो दिस ऑल विल लीड टू अ लॉट ऑफ शुगर लेवल फ्लक्चुएशन। दैट इज वाई इसी के लिए आपको अपने डॉक्टर को, डायबिटोलॉजिस्ट को रेगुलरली दिखाना चाहिए, आपके शुगर्स और डायबिटीज की दवाइयों को टाइट्रेट करवाना चाहिए, रेगुलरली किडनी के, हार्ट के, कोलेस्ट्रॉल के रिपोर्ट्स करवाने चाहिए, बिकॉज डायबिटीज इज नॉट अ डिसऑर्डर ऑफ ओनली शुगर्स, इट इज गोइंग टू अफेक्ट ऑल द सिस्टम्स इन योर बॉडी, एवरीथिंग। सो उसको कंट्रोल करने के लिए यू नीड टू बी इन्वॉल्व विद अ गुड डॉक्टर जो आपको ये टाइट्रेट करके देगा, बिकॉज अगर शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। अगर शुगर बहुत लो हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, यू कैन एंड अप इनटू कोमा, एंड शुगर्स बहुत हाई चले जाते हैं तो कीटोसिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो वी डेफिनेटली नीड टू टाइट्रेट दिस इंसुलिन एंड एंटी डायबिटिक मेडिसिन, जिसकी वजह से आपको कई बार घर पे भी होम शुगर मॉनिटरिंग करने की डॉक्टर एडवाइस करेंगे, कहाँ क्या शुगर कम हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से दे विल एडवाइस यू हाउ यू शुड प्रोसीड फर्दर। Thank you so much, Doctor. This was indeed a very informative session, a very informative FB Live, and I'm sure that बहुत लोगों को इससे बहुत सारी information मिली होगी। We also thank our viewers जो हमारे साथ जुड़े इस FB Live में, क्योंकि ऐसे लाइव सेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो जब हो रहे हैं तो इससे आप इसका लाभ ले रहे हैं, इसके लिए हम आपको भी थैंक यू कहेंगे व्यूअर्स। पृथा का एक और क्वेश्चन है, मिस पृथा का, बोल रहे एट व्हाट एज शुड एवरीवन स्टार्ट चेकिंग देयर शुगर लेवल्स आइडियली? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है ये मुझे।
राइट, एब्सोल्युटली, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। यूजुअली जैसे मैंने बताया आपको, टाइप 2 डायबिटीज यूजुअली मैनिफेस्ट आफ्टर द एज ऑफ 40-45। लेकिन अगर आपके पास कोई भी दूसरे कोई रिस्क फैक्टर्स है, लाइक आपके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, आपका वजन ज्यादा है, या आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, या फिजिकल इनएक्टिविटी है, तो आपको अपने शुगर चेक्स जल्दी करवाने चाहिए, से एट द एज ऑफ एनीवेयर बिटवीन 30 to 35। आपको अगर जेस्टेशनल डायबिटीज किसी को रहा है, किसी लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज था और वो प्रेगनेंसी के बाद निकल गया, उनको भी लॉन्ग टर्म पे आफ्टर जेस्टेशनल डायबिटीज ऑल्सो उनको अपना शुगर चेक करते रहना चाहिए। So, for a routine person who is maybe not obese, who doesn't have a significant family history after 40, but if somebody has got any of the risk factors, then it should be definitely anywhere between 30 to 35. थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई थिंक मिस प्रथा, आपको आपका आंसर मिल गया है। थैंक यू व्यूअर्स वंस अगेन, एंड स्पेशली वी वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी अच्छी तरीके से, इतनी सरलता से आपने हमें समझाया मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में डायबिटीज के चलते। ये गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लाइव है और हम आशा करते हैं कि हम आपसे जुड़े रहेंगे डियर व्यूअर्स, और अगली बार हम फिर से आएंगे एक और नया टॉपिक, एक बहुत रिलेटेबल टॉपिक लेके, जिससे हम सबको फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। अगर आप में से किसी को भी डायबिटीज या उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, फील फ्री टू गेट इन टच विद अस एट गुजरात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच।